All right, so temperature के topic में thermal equilibrium सबसे पहले. Thermal equilibrium is when there is no net heat transfer between two objects. This state is called thermal equilibrium. Now, to understand thermal equilibrium, you need to understand temperature. गौर से देखो, if these are two objects, और आजकल तो if you're in Pakistan, it's the winters are kicking in, you will feel this more. If let's say your temperature is T1 and the surrounding temperature is T2 and they're different, do you feel hot and cold? Like if the surrounding temperature is warm, you will feel hot. If the surrounding temperature is cold, you will feel cold. The reason for that is that whenever there is a temperature difference, there is going to be some heat transfer. So याद रखो, temperature difference जब होता है तो उसकी वजह से हीट ट्रांसफर होती है. अब मुझे ये बताओ, अगर मैं कहता हूं थर्मल इक्विलिब्रियम है, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है देयर इज नो हीट ट्रांसफर, तो उसका क्या मतलब है? इज देयर अ टेम्परेचर डिफरेंस और इज देयर नो टेम्परेचर डिफरेंस? पहले तो ये बताएं. There is no temperature difference, exactly. So याद रखो that when temperatures are equal, which means that the change in temperature is 0, then there is no net heat transfer. और इस चीज को हम कहते हैं thermal equilibrium. Are you guys with me on this? So far, so good. So ये तो हो गई आसान वाली बात. दूसरी बात, एक और point. Always remember that heat is transferred. Write this down. Heat is transferred from a region of high temperature to low temperature. Heat is always transferred from a region of high temperature to a region of lower temperature. ये तो I'm sure आपने O level में किया हुआ है. अभी तक ये सारा O level चल रहा है. अब सारा चक्कर ये है कि इस हीट को, इस टेम्परेचर को मेजर कैसे करें. उसके लिए वी नीड टेम्परेचर स्केल्स. So give the heading temperature scales. अब टेम्परेचर स्केल की जब मैं बात करता हूं, the first thing you need to understand is कि स्केल बनता किस चीज से? स्केल बनता है when you have something which is known as a thermometric property. Thermometric property. अब thermometric property क्या होती है? Guess करें, thermometric property का मतलब क्या होगा? It's a property which changes with temperature. It's a property, exactly, that scales accordingly with temperature, which changes with temperature, exactly. Exactly, like liquids. Mercury तो आपने बड़ी specific कह दिया, बिल्कुल सही बोला. Liquids, for example, लिखो. For example, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ property, और यहाँ पे हम एक कॉलम बना लेते हैं type of thermometer. So if the property is linear expansion, then this type of thermometer would be called a liquid in glass thermometer, जिसको आप mercury thermometer भी कह सकते हैं. Do you guys understand? So property क्या है? Property है linear expansion.
अब इसी तरह कोई और प्रॉपर्टी सोचे जो टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाए, एनीथिंग, कोई और चीज। आपने फिजिक्स पूरी पढ़ ली ओ लेवल की, मुझे और बताओ टेम्परेचर के साथ क्या क्या चीजें चेंज हो जिनको हम मेजर भी कर सकते हैं? वॉल्यूम, एग्जैक्टली, रेजिस्टेंस, ये सब थर्मोमीटर्स हैं। रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल, तो इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। क्या बोलते हैं इसको? रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। एग्जैक्टली, प्रेशर। ये लिनियर एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड लिख देना इसको पूरा, प्रेशर। तो प्रेशर से जो थर्मोमीटर बनता है उसको हम बोलते हैं प्रेशर थर्मोमीटर। इस तरह वॉल्यूम भी चेंज होता है, उसे वॉल्यूम थर्मोमीटर बना सकते हैं। ईएमएफ, बिल्कुल, ईएमएफ से थर्मोकपल बन सकता है। ईएमएफ ऑल्सो चेंजेस, उससे यू कैन गेट थर्मोकपल। So do you guys understand what we mean by thermometric property? Thermometric property ऐसी प्रॉपर्टी जो टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाए, और खाली चेंज ना हो, a property which changes, नोट में लिखो, that change should be linear. What do we mean by linear? Linear का क्या मतलब होगा? That, for example, resistance of a thermometer, resistance of a metal, sorry, is proportional to the change in temperature. Or you can say the change in resistance of a metal is proportional to the change in temperature. It changes equally with temperature. So मैं इसके नीचे तर्जुमा लिख देता हूं, इसका अभी लिख लें कि resistance of a metal changes proportionally with temperature. So when they say that the property should change linearly, अब लिखो मतलब इसका, क्वेश्चन लिखो, लिनियर का क्या मीनिंग है? लिनियर का मीनिंग ये है that the property changes proportionally with change in temperature. Make sense, everybody? So far, so good. So scale तो बाद में आता है, पहले आती है आपको वो चीज मिल जाए जो टेम्परेचर के साथ लिनियरली चेंज हो जाए। जब एक दफा वो चीज मिल जाए फिर हम स्केल की तरफ आ जाते हैं। अब हमें प्रॉपर्टीज पता चल गई, अब प्रॉपर्टीज को मेजर भी तो करना है। अब रेजिस्टेंस ऑफ मेटल, मेटल की रेजिस्टेंस चेंज होगी, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो टेम्परेचर चाहिए उससे। सो उसके लिए वी नीड अ स्केल। स्केल के अंदर the most famous scale, which is known as the Celsius scale. Celsius scale has two fixed points. I'm sure you've done this in O levels. 0 degree Celsius and what is the upper fixed point? Chemistry में पढ़ते होगे upper fixed point and lower fixed point. शाबाश, 100 degree Celsius. ये दो fixed points होते हैं, ये दो fixed points होते हैं। और उसके बाद अब तो O लेवल से निकाल दिया, बट A लेवल में अब ये चीज आती है, A लेवल में ये चीज आती है। that let's say for example ये एक थर्मोमीटर है, गौर से देखना, ये थर्मोमीटर है। हम इस लेंथ को बोलते हैं L0। इस लेंथ को क्या बोलते हैं? L0। बनाए इसको, हम इस लेंथ को बोलते हैं L100।
ये किसकी लेंथ है? गौर से देखिएगा, मैं लिख रहा हूं साथ साथ। लेंथ L100 का मतलब क्या है? दिस इज द लेंथ ऑफ मर्करी एट 100 डिग्री सेल्सियस। सो गौर से देखो, दिस इज योर स्टेम, इसको लिख लो, इसको लेबल कर लो कि ये मेरा मर्करी का ये स्टेम है या थर्मोमीटर का स्टेम है, जिसके अंदर वो मर्करी राइज करती है, सबको बुखार चढ़ा हुआ है, सो एवरीबॉडी नोज कि वो, फिर आप इसको देखते हैं, अब तो डिजिटल थर्मोमीटर्स आ गए, बट हमारे बचपन में डिजिटल नहीं होते थे, तो हम लोग यूं देखते थे, अभी भी पेरेंट्स वैसे देखते हैं। सो जब बुखार चढ़ा होता है तो यहाँ पे मर्करी राइज करती है, वो मर्करी आपको नजर आती है एक हद तक। सो हम जब उसको टेस्ट कर रहे होते हैं, जब लैब के अंदर ये डिजाइन हो रहा होता है थर्मोमीटर, तो उसको 100 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाके चेक करते हैं कि जी ओके 100 तक कितनी लेंथ गई, उसको कहते हैं L100। डू यू गाइस अंडरस्टैंड व्हाट डज L100 मीन? इट्स जस्ट नॉट दिस लेंथ, इट्स द लेंथ ऑफ मर्करी एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब इसी तरह मुझे बताओ L0 का क्या मतलब होगा? फिर मैंने एक सवाल देना तुम लोगों को, L0 क्या मतलब होगा? What would L0 mean? It means, shabash, the length of mercury, no, not at room temperature, the length of mercury at 0 degrees Celsius. 0 degrees Celsius is not room temperature. Length of mercury at 0 degrees Celsius. अल्लाह माफ करे अगर ये रूम टेम्परेचर हो जाए, क्या बनेगा हमारा? So far so good. अब इसके लिए आपको याद होगा, बार बार कह रहा हूं, आपको याद होगा, जो मुझे अभी अभी तक इट्स टेकिंग टाइम फॉर मी टू एडजस्ट टू द चेंजेस इन सिलेबस। मैंने अपने ओ लेवल में एक फॉर्मूला पढ़ा था जिसमें हमें कहते थे कि जी ये अननोन टेम्परेचर टी है, तो यहाँ पे लिखो टी इज माय अननोन टेम्परेचर, देखिए, और अननोन टेम्परेचर तक जो लेंथ है दैट लेंथ इज एल टी। सो यहाँ पे एल टी लिखो, दिस इज द लेंथ ऑफ मर्करी at the unknown temperature. वो कहता क्या है? वो कहता ये कि मुझे निकाल के दो what is the unknown temperature. So unknown temperature T in degree Celsius will be equal to, formula लिख लें please. The formula will be length of mercury at T, which is the unknown temperature, minus the length at 0 degree Celsius, divided by the length at 100 degree Celsius, minus the length at 0 degree Celsius, into 100 डिग्री सेल्सियस। ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे और आपके पास वो अननोन टेम्परेचर निकल आएगा। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे एकदम से ये क्या हुआ, ये फॉर्मूला कहां से आ गया? देखो इसकी डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, बट मैं तुम लोगों को थोड़ा सा गाइड जरूर करूंगा इसके ऊपर, क्योंकि आई थिंक इट इज वर्थ अंडरस्टैंडिंग। और से देखना, एक काम ये करो, दो एक्सेस बनाओ, वाई एक्सिस के ऊपर लिखो फॉर एग्जाम्पल लेंथ, और एक्स एक्सिस पे लिखो टेम्परेचर। प्लीज राइट दिस डाउन फॉर मी रियल क्विक, शाबाश, लिखिए जल्दी से, मुझे बताएं व्हेन यू डन। डन, ओके, ब्रिलियंट। सो ये ग्राफ जो बनता है मेरे जवानों, वो बनता है कुछ ऐसे, ठीक है? इस प्रॉपर्टी लिनियरली चेंज हो रही होती है। अब मुझे बताओ ये कौन सी लेंथ है? गैस करो, ये टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस चल रहा है, ये वाली लेंथ कौन सी लेंथ है? तीन है लेंथ, L0 है, LT है और L100 है, ये कौन सी लेंथ होगी? वेल डन मानिया, दिस इज L0, लिखें, दिस इज L0, और ये यहाँ पे टेम्परेचर लिखें 0।
और ये जो हाईएस्ट नजर आ रही है आखिरी वाली, ये वाली, ये कितनी है? व्हाट इज दिस लेंथ? दिस इज L100. शाबाश, लिखिए L100 and the temperature is going to be 100 डिग्री सेल्सियस. Does that make sense? और हमने स्ट्रेट लाइन क्यों बनाई है? What are we assuming? Why have we made a straight line? Linear. Shabash. We're assuming that property that is changing linearly. Linear change, linear expansion. So straight line की वजह लिख लो. Straight line हमने इसलिए बनाई है क्योंकि हमें पता है कि linear expansion है. Okay. अब मुझे ये बताओ, अगर मैं तुम लोगों को कहूं कि मुझे इन 4 सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स, 2 सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स हैं, 4 पॉइंट्स हैं, एक ये कोऑर्डिनेट है, इसका कोऑर्डिनेट लिखो, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0,L0, इस पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट लिखो, क्या लिखोगे? बताओ शाबाश. व्हाट्स द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट? इट्स 100, L100. Make sense? Guys, if I ask you to calculate what is the gradient, how will you calculate the gradient? बताएं. Gradient is y2 minus y1 over x2 minus x1. Makes sense? So gradient will be equal to y2 minus y1. इसको y2 कहते हैं और इसको y1 कहते हैं. So can I say L100 minus L0? शाबाश. Over 100 minus 0. Make sense? तो मतलब 100 लिख दें. Exactly. Simplify करके 100 लिख दें. So will I get L100 minus L0 over 100? ये बात समझ आ गई सबको? अच्छा, अब गौर से देखना. अब वो अननोन टेम्परेचर T था कहीं बीच में, उसको बना ले. और जो अननोन लेंथ थी जो हमने मेजर कर ली थी रूलर के साथ, वो LT थी. ये बना ले और इसके भी कोऑर्डिनेट्स लिख लें, T, LT. Are you guys with me? Yes or no? मेरे जवानों, अब एक काम करो, इन 2 पॉइंट्स के दरमियान में ग्रेडियंट कैलकुलेट करो. कैलकुलेट द ग्रेडियंट बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स. इन दोनों के बीच में ग्रेडियंट कैलकुलेट करें. So you're calculating the gradient between T, LT and 0, L0. Tell me what the answer is. Gradient की value. शाबाश. So it's going to be LT minus L0 over T minus 0. Make sense? आप मुझे ये बताओ, हारिस और रुतबा और जरार, आप लोग सारे, अली, अबीहा, अरीना, मुझे बताएं, क्या ये दोनों ग्रेडियंट्स इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे? Would these 2 gradients be equal or unequal? Equal, because it's a straight line, है ना? So लिखो L100 minus L0 over 100 is equals to LT minus L0 over T. Make sense? अब देखो, अगर मैं इक्वेशन को रीअरेंज करूं, मैं T को उठा के इधर ले जाऊं और बाकी सब चीजों को दूसरी तरफ ले जाऊं. So T will be equal to what? It will be equal to LT minus L0 over, अब ये 100 यहां पे ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो into 100 लिख दो और इसको डिवाइड करो बाय दिस, इट विल बी L100 minus L0. क्या इक्वेशन समझ आ गई? सबको इक्वेशन समझ आई कि वो जो अननोन टेम्परेचर T है, अगर मेरे पास ये लेंस हो तो बड़े आराम से निकल आएगा. Does that make sense? अब इसका सवाल सुनो.
एक बात याद रखना, नोट में लिख लो बिफोर आई गो टू द क्वेश्चन. Celsius scale only works if the property varies linearly with temperature. ये बात नोट कर ले, बात लिख लेंगे कि सेल्सियस स्केल सिर्फ और सिर्फ काम तब करता है जब वो प्रॉपर्टी वेरी करती है लिनियरली विथ टेम्परेचर. ओके, लिख लिया सबने? अब मेरा सवाल सुनो. माय क्वेश्चन इज, द रेजिस्टेंस ऑफ, लिखो, a thermistor, resistance of a thermistor at 0 degrees Celsius is 3840 ohms. At 100 degrees Celsius, the resistance is 190 ohms. When the thermistor is placed in water at a temperature, हमें नहीं पता वो टेम्परेचर कितना है, बट किसी टेम्परेचर पे its resistance is 2300 ohms. अब मेरा क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन ये, part 1, assuming that the resistance of the thermistor varies linearly with temperature, calculate T. Azan, or you just wait while you guys solve, I'll wait.
Okay, let's start. So resistance of a thermistor at 0 degrees Celsius is 3840. At 100, the resistance is 190. When a thermistor is placed in water at a temperature, its resistance is 2300. बताइए जी टेम्परेचर टी कितना है? तो आपको फॉर्मूला अप्लाई करना था. मैंने तो आप लोगों को मर्करी के लिए कराया था ना. मर्करी के हमने पहले बात की थी कि जरूरी तो नहीं है खाली ये हो, वो ये भी तो हो सकता है. और अगर वो ये होगा, रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होगी, तो सिर्फ आपने यहां पे एल की जगह क्या लिख देना है? टी. तो फॉर्मूला वही रहेगा, टी स्लैश डिग्री सेल्सियस. पहले जनरल फॉर्मूला लिखते हैं. Is equals to resistance at the unknown temperature minus the resistance at 0 degrees Celsius divided by resistance at 100 minus resistance at 0 into 100 degrees Celsius. फॉर्मूला चेंज हो गया. ठीक. अब resistance at unknown temperature is 2300, तो हम 2300 लिख देते हैं. Resistance at 0 was 3840, तो 3840 लिखते हैं सारा. मे बी अब तुम्हारा आंसर ठीक आ जाएगा. Divided by resistance at 100 was 190 given in the question. So यहाँ पे आपने लिखा 190. Minus resistance at 0, that is 3840, और इसको मल्टीप्लाई कर दें 100 डिग्री सेल्सियस के साथ. समझ आ गई? Yeah, it's 2300, not 20. 23, it's 2300. जी मनान, क्वेश्चन पूछे, पहले जवाब बताएं. सर हम इसको ऐसे कर सकते थे कि at 100 degree it's 190 ohm and at x degree it's 2300 ohm. नहीं, उसकी वजह ये है, you're taking a direct relation between them. You're not assuming it's a straight line which is starting at a non-zero point. Okay. Yeah. So 42.2 डिग्री सेल्सियस आपका जवाब आ गया. अब वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल देगा यहाँ पे. कहता है पार्ट 2 में लिखो, द टेम्परेचर ऑफ वाटर, इसी टेम्परेचर, इसी पानी का टेम्परेचर, द टेम्परेचर ऑफ वाटर एज मेजर्ड ऑन द थर्मोडायनामिक स्केल. और इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको थ्योरी समझाने लगा हूं. The temperature of water as measured on the thermodynamic scale is 286 kelvins. कहता है by reference to what is meant by reference to what is meant by thermodynamic scale, comment on your answer in one. अच्छा, अब आप लोग काम ये करें कि ये पार्ट लिख के ना, इसके नीचे कोई let's leave 5 lines. So you guys leave 5 lines, because I'm going to come back to this part. I'm going to explain you something and then we'll come back to this. But 5 lines chhod dein. Let me know when you guys have written down the question so that I can explain a couple of things to you. Shabash. Let me know when done. I'm waiting. Sarah is done. Anybody else? Mariam is done. Zarar is also done. Perfect. So many of you are done. Okay. अब जवानों बड़े गौर से मेरी बात को सुनो. हेडिंग दो थर्मोडायनामिक स्केल. फिर हम वापस आएंगे इस क्वेश्चन के ऊपर. Thermodynamic scale is also known as the Kelvin scale. Thermodynamic scale is also known as the Kelvin scale. गौर से सुनना. केल्विन एक बंदा था जिसने सेल्सियस स्केल को देखा, और सेल्सियस स्केल, सेल्सियस के नाम, लॉर्ड सेल्सियस वाज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट.
सेल्सियस स्केल के ऊपर दो फिक्स पॉइंट्स हैं, 0 और 100। केल्विन ने सेल्सियस के स्केल को कॉपी किया, लेकिन वो एक स्टेप आगे निकल गया उससे। उसको सेल्सियस के स्केल में एक मसला नजर आ गया। वो सेल्सियस के स्केल का मसला क्या है? वो मसला ये है, एक लिमिटेशन है, मसला नहीं है, लिमिटेशन कहना चाहिए, कि जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ये सारा आप चीजें लिख रहे हैं, कहानी नहीं सुन रहे, कहानी भी है और लिखना भी है। सेल्सियस के स्केल की लिमिटेशन क्या? सेल्सियस के स्केल की लिमिटेशन ये है कि इसका 0 डिग्री सेल्सियस ये नहीं प्रूव कर पाता that the kinetic energy of the molecules is also 0। ये नहीं प्रूव कर पाता, नॉट इक्वल टू 0 लिखते हैं कि टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं होती। ये प्रॉब्लम है सेल्सियस स्केल के 0 में, लिमिटेशन है, प्रॉब्लम नहीं कहना चाहिए, लिमिटेशन कहना चाहिए। केल्विन वाज अ गाय हु फिगर्ड, एक्चुअली उसको फिगर करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये चीज सबको मालूम थी कि सेल्सियस के स्केल पे टेम्परेचर को और कम करो और कम करो और कम करो, यहां तक कि उसको -273.15 पे ले आओ। ये वो टेम्परेचर है, -273.15 डिग्री सेल्सियस, ये वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, जिसमें आपके एटम्स वाइब्रेट कर रहे होते हैं, वो वाइब्रेट करना बंद हो जाते हैं। यह सब 0, इसको एब्सोलूट 0 कहते हैं। मतलब ये कि ये वो वाला पॉइंट होगा जहां पे काइनेटिक एनर्जी बिकम्स एब्सोल्युटली 0। सो -273.15 डिग्री सेल्सियस कहलाएगा। अब क्रेडिट किसको मिल जाना था? जिसका स्केल यूज हो रहा है, जिसका नाम यूज हो रहा है, -273.15 क्या डिग्री सेल्सियस। तो केल्विन भाई ने क्या किया? केल्विन ने ये किया कि उसने कहा कि मैं इसको क्रेडिट तो नहीं दे सकता। उसने अपना स्केल बनाया साथ में, और उसने कहा मैं अपने स्केल में इसी टेम्परेचर को एक नया नाम दे दूंगा, और मैं कहूंगा कि मेरे स्केल में, केल्विन स्केल के अंदर, दिस पॉइंट इज 0 केल्विन। डू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? किसी और की चीज यूज करो और नाम अपना लगा दो, स्टिकर अपना लगा दो उसके ऊपर, और नंबर भी थोड़ा चेंज कर दो, बट पीछे बैकग्राउंड में क्या है? पीछे बैकग्राउंड में यही है, -273.15। डू यू गाइस अंडरस्टैंड कि -273.15 डिग्री सेल्सियस इज दैट टेम्परेचर वेयर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल बिकम्स 0? But -273.15 is like a difficult thing to pronounce. So Kelvin came up with a smart idea. He said, मैं अपना स्केल बनाता हूं और मैं इसको 0 केल्विन कह देता हूं। So 0 केल्विन, उसने कहा मेरा जो, जब मैं कहूंगा 0 तो उसका मतलब होगा एब्सोलूट 0। उसका क्या मतलब होगा? उसका मतलब होगा एब्सोलूट 0। सारा, दिस इज फॉर एनीथिंग। If anything goes down to 0 Kelvin, it will mean that the kinetic energy of that body is absolutely 0. अगर 0 Kelvin हो जाए टेम्परेचर, सो 0 Kelvin को एब्सोलूट 0 भी कहा जाता है। एब्सोलूट 0 का मतलब कि जब टेम्परेचर 0 Kelvin होता है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज ऑल्सो 0। डज दिस मेक सेंस एवरीबडी? ये कमाल था उसका। नो सेल्सियस डिड गो बिलो। मैं बताता हूँ ना, वो तो उसके पहले, वो तो Kelvin was just a smart guy who wanted his own name to come. As a result, he did not use this number. वरना ये तो पहले से मालूम था कि हमारे पास डेटा तो होता है from 0 to 100. Can that temperature be reached? उसको आप एक्सट्रैपुलेट करते हैं। सो हम ग्राफ के ऊपर, अगर हम ग्राफ बनाए ना, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस का, तो डेटा हमारे पास था यहां का, ठीक है, डेटा था हमारे पास यहां का।
इसको एक्सट्रैपुलेट किया पीछे की तरफ, करते गए करते गए करते गए करते गए स्ट्रेट, आपको पता है ना लिनियर चेंज तो है, तो करते गए, पता ये चला कि ये वाला पॉइंट एक्सट्रैपुलेशन के बाद हमें पता चलता है कि ये वाला पॉइंट है -273.15. So this thing, Khizra, was already done. That was not done by Kelvin. The thing was already sorted. Kelvin ने सिर्फ काम ये किया कि उसने कहा यार मैं -273.15 नहीं लिखूंगा, उसने कहा कि मैं अपना स्केल बनाऊंगा जिसके ऊपर मैं लिखूंगा यहाँ पे टेम्परेचर इन केल्विन और यहां पे लिखूंगा काइनेटिक एनर्जी, और सारी दुनिया खुश हो जाएगी मुझसे। क्यों? क्योंकि मैं अपना जीरो उसके -273 पर रख दूंगा। सो समझो कि उसने ये एक्सेस इधर से उठा के ना इधर शिफ्ट कर दी। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? उसने सिर्फ ये काम किया। सो एज अ रिजल्ट इन हिज स्केल it is a straight line that passes through the origin. Do you understand what I'm saying? उसके केस में for a Kelvin scale it's a straight line which passes through the origin, which is why it is known as the thermodynamic scale. Thermodynamic का मतलब है कि varies with kinetic energy. Dynamic motion, movement, thermo heat, so varies linearly with energy. Do you guys understand? खैर, इतनी लंबी चौड़ी कहानी पता होने की जरूरत नहीं, सिर्फ पता ये होने की जरूरत है कि जो कन्वर्जन है बिटवीन केल्विन एंड सेल्सियस, वो शायद अब तुम लोगों को समझ आ जाए कि टेम्परेचर इन केल्विन शुड बी इक्वल टू द टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273.15. डज दैट मेक सेंस? खुद सोचो अब कि जब यहां पे -273.15 डालोगे तो आंसर क्या आएगा? केल्विन टेम्परेचर कितना आ जाएगा? जब यहां पे आप -273.15 प्लग करेंगे तो केल्विन टेम्परेचर कितना आएगा? 0. करके देख लो। टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू -273.15 प्लस 273.15. So your overall temperature is going to be 0 Kelvin, which is this temperature. So equation जो याद रखनी है वो ये वाली। Alright, और उसके ऊपर अब मुझे ये बताओ ये वाला टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन रिप्रेजेंट करेगा? 0 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन टेम्परेचर रिप्रेजेंट करेगा? करके देखें। इफ आई एम सेइंग, क्वेश्चन लिखो कि 0 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन रिप्रेजेंट करता है, तो आप कहेंगे जी इसमें कौन से मसले वाली बात है? टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273.15. सो टेम्परेचर सेल्सियस को 0 डाला, 0 प्लस 273.15. सो दिस इज 273.15 केल्विन। गॉट इट? और केल्विन ने कहा कि मेरे स्केल में you just need a single fixed point. This is Celsius scale में you have 2 fixed points. Kelvin scale में you just have a single fixed point. So अगली बार जो नोट में लिखनी है वो ये है, Kelvin scales have a single fixed point. Celsius scales have 2 fixed points. Got it? अब इससे फर्क क्या पड़ता है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आंसर तो सेम आना चाहिए। अब मैं आप लोगों को फॉर्मूला समझाता हूं कि केल्विन स्केल के लिए फॉर्मूला कैसे बनता है। सो हम क्या करते हैं, हम प्रॉपर्टी मेजर करते हैं एट 273.15 केल्विन्स। हम प्रॉपर्टी मेजर करते हैं 273.15 केल्विन और यहां पे टेम्परेचर लिख देते हैं 273.15 केल्विन। फिर हम वो प्रॉपर्टी मेजर करते हैं एट द अननोन टेम्परेचर।
and the unknown temperature is T. So for example, इसकी एग्जाम्पल ले लो. एग्जाम्पल ये कि हम लेंथ ऑफ मर्करी मेजर कर लेंगे एट 273.15 केल्विन्स और हमें पता होगा टेम्परेचर है 273.15 केल्विन्स. मैं आपको इसका एक सवाल दे देता हूं. Let's say, for example, the length of mercury at 273.15 kelvins is equals to 3 centimeters. अब मैं कहता हूं एक अननोन टेम्परेचर T है, लेकिन लेंथ जो है ना वो आ रही है 7.5 सेंटीमीटर्स. तो मुझे ये बताओ, ये क्वेश्चन है, फाइंड द अननोन टेम्परेचर. ट्राई करें जल्दी से, अननोन टेम्परेचर निकाल के दें. सो आपके पास लेंथ एट 273 है 3 सेंटीमीटर्स, आपको टेम्परेचर भी मालूम है 273.15. अननोन लेंथ इस अननोन टेम्परेचर पर लेंथ इज 7.5. मुझे ये बताना है आपने कि ये टेम्परेचर T कितना था. तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे 3 सेंटीमीटर्स के सामने 273.15 केल्विन, 7.5 सेंटीमीटर के सामने आप लिखेंगे टेम्परेचर T, और दोनों का डायरेक्ट रिलेशन. मुझे ये बताओ, जब लेंथ ज्यादा होगी, खुद सोचो कि जब लेंथ ज्यादा होगी तो टेम्परेचर ज्यादा होगा या कम होगा. जब लेंथ ज्यादा करेंगे तो टेम्परेचर ज्यादा होगा या कम होगा. The bigger the length, the temperature will be more or less more. So do they have a direct relation or inverse? More. So do they have a direct relation or inverse? Direct. Direct relation में क्या करते हैं? Cross multiply. So you will do 7.5 into 273.15 is equals to 3T. Find the unknown temperature, please. जल्दी से निकालें. Find the unknown temperature, T. Exactly. 683 क्या? 683 क्या? 683 Kelvin. शाबाश. एक और क्वेश्चन लिखें. The pressure recorded by a gas thermometer at a temperature T is 4.8 into 10 is to the power 4 Newton per meter square. Pressure का thermometer है. Calculate T if the pressure at 273.15 Kelvin is 4.2 into 10 is power 4 Newton per meter square. करें जी जल्दी. शाबाश. This is the last thing. बस खत्म हो गया ये. हम बिल्कुल खत्म, बिल्कुल एंड की तरफ आ गए. शाबाश. उसी तरह 2 रोज बनाओ और जवाब निकालो. So the pressure recorded by a gas thermometer at temperature T is 4.8 into 10 is to the power 4 Newton per meter square. Calculate temperature if the pressure at 273.15 is 4.2 into 10 to the power 4 Newton per meter square. Shabash. Well done. So what is the unknown temperature? The unknown temperature is going to be I think it's going to be 4.8 into 10 to the power 4 divided by 4.2 into 10 to the power 4 into 273. यही किया ना आप लोगों ने और 312 केल्विन आंसर निकाल दिया.
इज दैट राइट? सो अब आप लोगों को अगर मैं 1 सेकंड में ये कहूं कि मेरे पास थर्मोकपल थर्मोमीटर है, दिस इज द लास्ट थिंग, थर्मोकपल थर्मोमीटर है, मुझे उसका सेल्सियस स्केल का फॉर्मूला बना के दें, सेल्सियस स्केल का फॉर्मूला बना के दें, और उसका केल्विन स्केल का फॉर्मूला बना के दें, तो आप क्या बनाएंगे? जल्दी से बताएं। वो जो अननोन टेम्परेचर टी वाला, अननोन टेम्परेचर टी वाला, सो T/डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, यहां पे लिख लें T/केल्विन इज इक्वल टू, जी बताएं पहले वाले मनान क्या बनेगा? थर्मोकपल यूज कर रहे हैं, EMF है ये वही चीज है ना, पहले आपने कहा था ना LT माइनस L0 ओवर L 100 माइनस L0 इंटू 100, ये पहले फॉर्मूला पढ़ा था ये अभी थोड़ी देर पहले, यस और नो? LT minus L0 over L100 minus L0 to 100 पढ़ा था ना ये, this was for the temperature in degree Celsius for mercury in glass. अब क्या बनाएंगे? अब सेल्सियस स्केल यूज करें, लेकिन थर्मोकपल है, प्रॉपर्टी चेंज हुई है बस। VT minus VO. हाँ, the voltage at T या EMF at T minus the voltage at 0 या EMF at 0 divided by what? बताओ। V100 minus VO. V0 voltage Zero. at 0 into what? 100. Into 100 बस। सर बोरिंग हुआ था चैप्टर। सॉरी, मैं कह रहा हूँ सर बहुत बोरिंग चैप्टर है। हाँ हाँ बस खत्म हो गया, आई नो बहुत बोरिंग है, बस खत्म, इसलिए जल्दी मैं खत्म भी कर दिया, इट्स ऑलमोस्ट फिनिश्ड। दूसरा, केल्विन स्केल का फॉर्मूला क्या बनेगा जवानों? बिल्कुल जरा आपने सही बताया, केल्विन स्केल का फॉर्मूला बताएं। अब केल्विन स्केल में याद रखो ये 4.8 इन 10⁴ was this the property at the unknown temperature, was this the pressure at the unknown temperature or pressure at 273? ये 4.10⁴, इसको अगर मैं कहूं वर्ड्स में लिखो, आप कहेंगे प्रेशर एट द अननोन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय 4.2 10⁴, ये क्या था? प्रेशर एट 273.15 इंटू 273। तो बताओ इसको देखो अब मनान, और मुझे बताओ यहां पे क्या फॉर्मूला बनेगा? थर्मोकपल यूज करना है, प्रेशर ना बोल देना। सर जो भी हमारा लाइक वोल्टेज का डिवाइड करके आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 273 वोल्टेज एट द अननोन टेम्परेचर divided by voltage at 273.15 into 273 exactly divided by voltage at 273.15 into सर इसे 273। 273.15 नहीं होना चाहिए? हाँ किधर? इनटू इंटू ऊपर आपने प्रेशर में 273.1, लिखा हुआ ये इंटू 273.15, हाँ इसको, Yes, हाँ यस, इंटू 273.15, यस। गाइस इज दिस क्लियर? सो आपको कोई भी वो फॉर्मूला उठा के दे दे, मैंने आपको ये इसलिए करा रहा हूं कि आपको वो कोई भी फॉर्मूला उठा के दे देते हैं। लेट्स से फॉर अभी आपने प्रेशर कर लिया है, आपको मर्करी इन गैस का किसी का भी फॉर्मूला बनाने को आ सकता है। सो विल यू बी एबल टू मेक इट? यस, जो पीछे जो क्वेश्चन रह गया अनसॉल्व वो हम कल की क्लास में करेंगे। अभी थोड़ी सी एक बात मेरी रह गई है, बट आई विल होल्ड इट टिल हियर। इज दिस क्लियर एवरीवन? So far so good. So are you comfortable with making formulas now? मुझे जल्दी से बताओ मनान माइक पे, अगर मर्करी का यूज करें तो लेंथ LT माइनस L0 ओवर L100 माइनस L0 इंटू 100, ये कौन सा स्केल है? So this is normal thermometer. ये कौन सा स्केल का नाम बताओ ना? नॉर्मल थर्मोमीटर सेल्सियस स्केल है। Celsius scale. अब मैं कहता हूँ केल्विन स्केल के लिए मुझे बताओ क्या फॉर्मूला बनेगा?
सर टेम्परेचर अननोन या लेंथ अननोन? Length, no. Temperature unknown in Kelvin is equals to what? लेंथ अननोन Length at the unknown temperature, yes, divide by length. by length at 273.15. Exactly. Into 273.15. बस इतनी सी चीज है. Is it now clear? अब मैं Yes, तुम्हें yes. कहूं मुझे वॉल्यूम का बताओ, वॉल्यूम वाले थर्मोमीटर का सर इट इज सेल्सियस वी में. सेल्सियस में हाँ VT सेल्सियस में. माइनस वॉल्यूम एट टी माइनस वॉल्यूम एट ओ ओ या 0 0 डिवाइड बाय वॉल्यूम एट 100 हम्म माइनस वॉल्यूम एट 0 हम्म into 100. इनटू एग्जैक्टली. और अगर मैं कहूँ केल्विन में बताए, Sir, V at unknown temperature, volume at unknown temperature divided by volume at 273.15 into 273.15 Kelvin. बस खत्म हो गया. इज इट क्लियर नाउ? Yes. ओके, सो दैट इज इट. दैट इज ऑल. ये बिल्कुल, ये जो Sir, फॉर्मूला है ये सिंपल रेशियो है. और इससे Sir, सिंपल V रेशियो तो मैंने उस क्वेश्चन का जवाब देना जो मैंने आपको सेकंड पार्ट कराया था, बट इंशाल्लाह वो हम अगली क्लास में करेंगे. Sir, V डन जी. voltage नहीं? वी, यहाँ पे वी को मैंने इसलिए पूरा वॉल्यूम लिखा है ताकि तुम कंफ्यूज ना करो उसको. Okay. वी अगर ठीक. वोल्टेज हो तो थर्मोमीटर का नाम क्या होगा? Thermocouple. और अगर वी का नाम वॉल्यूम हो तो क्या, कौन सा थर्मोमीटर होगा ये? Normal mercury. गैस वॉल्यूम. वॉल्यूम. Volume. वॉल्यूम किस चीज का मेजर करते हैं? गैस का. मर्करी की Gas. लेंथ मेजर करते हैं. Sir, types of thermometer तो नहीं हमसे पूछा है कभी? नहीं, नहीं. नहीं पूछेगा. ठीक. चलो. डन. टेक केयर एवरीबॉडी. थैंक यू. खुदा हाफिज. खुदा हाफिज.